Hello everyone, this is Ali Ehtisham Rajput and welcome back to another video. Those who are new to this channel, I talk about fashion and the technical side of social media. We'll get into the video right after this short intro. So before getting into today's video, I posted on my Instagram and I asked you guys to write down the questions that you want me to answer on the video, and I have shortlisted some questions. इसमें बहुत से क्वेश्चंस मिलते जुलते थे, तो आई हैव क्रिएटेड माय ओन क्वेश्चन. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे जो एक तरह के थे, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं जो कि कंटेंट रिलेटेड थे. बहुत से और क्वेश्चंस भी थे जो कि थोड़े से कंटेंट से इररेलेवेंट थे, तो आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम ऑन माय इंस्टाग्राम. खैर, one of the question was how you got into this, how I got into all of this. Okay, तो जो लोग नहीं जानते हैं, I have worked as a professional actor and model and I've been working since 2016. So I did my first project for Jio Television, which was called Roshni, and I played a negative character. So I've been in this field for quite a long now. It's been 4 years now. So I started with the baby steps. This is how I got into all of this. Alright, so second question is almost exactly the same. It is, how did you start it? Okay, I guess you're asking about how I started my blog, right? मैं आप लोगों को इस बात का answer. What happened was, back in 2019, I started gaining weight because I started working and I was working a corporate job. So I started gaining a lot of weight and I've literally left myself in a way that मैं बिल्कुल भी dress up नहीं होता था, and I used to wear shalwar kameez all day, and I would not wear any sort of jeans or t-shirt or shirts, and I would just wear shalwar kameez, and I had left myself. So I gained around 20 kilos in 2019. And gaining that much weight was very depressing, और ये मुझे बिल्कुल साथ साथ मारता जा रहा था. मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था और बिल्कुल अपने आप को छोड़ चुका था एक साइड पे. जब आई रियलाइज, और एक दिन आई गॉट अप एंड आई सेड इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू reduce my weight and I am going to take care of myself. And that was the day I started gym. और I was scared कि यार if I create a blog तो मतलब लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा this fat guy is here and telling us how to wear things and all. तो मैंने अल्लाह का नाम लिया and I just started my channel. Alright, so there's another question, how to earn through blogging. It's quite easy. I'll be answering all of that in this video. Alright guys, so I will try to explain you guys how this works, because when I was coming up, these bloggers and influencers were not replying me, and they never replied to my comments or my DMs or even my emails. So I will tell you a few steps कि आप लोग blogging कैसे start कर सकते हैं and how to earn money through blogs. The first heading will be how to reach to the brands. अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हम लोग इजीली ब्रांड से पैसे ले सकते हैं और हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है. इफ यू लुक एट माई पेज, तो दिस पेज हैज 22.7K फॉलोअर्स एंड मैंने आज तक ₹1 भी इस पेज से नहीं कमाया है. ऑन द अदर हैंड, माई दिस पेज इट हैज अराउंड 1200 फॉलोअर्स एंड आई हैव गेन्ड decent amount of money from this page. I'll tell you how it works. So first of all, when I started reaching out to the brands. What I did was that I would email a lot of brands, a lot of pages, a lot of new brands, and ask them that if they needed any sort of help. अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उन ब्रांड्स को मैसेज करेंगे जिनका साइज या जिनकी रीच आपके पेज जितनी है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप न्यू ब्रांड्स को देखते हैं जिनकी अभी इतनी ज्यादा रीच नहीं है या जिनकी इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो यू कैन हेल्प देम इन अचीविंग देयर गोल्स एंड दे वुड हेल्प यू इन व्हाट यू वांट. But it will take time. Obviously, it takes a little time. So what I did was that I used to email a lot of brands, lot of pages on Instagram, lot of pages on Facebook, and I would tell them that how I can help them in gaining what they want.
and in achieving what their goal is. So number one. Number second is you have to be a little creative. You have to create a content that is creative, and you have to engage with your followers in a way that they listen what you're trying to say. वो इस बात को समझ सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं, एंड वो आप उनको इस तरह एंगेज करें कि जो भी आप उनसे कहें आपका इतना उन पे इन्फ्लुएंस हो, आपका इतना उनके ऊपर असर हो कि आप जो भी उनसे कहें वो ये करें। खैर ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर आपके 100% फॉलोअर्स हैं तो उसमें से एटलीस्ट 10 to 20% भी अगर आपकी बात सुनते हैं एंड तो उससे उस ब्रांड को फायदा होता है। तो व्हाट आई डिड वाज दैट मैं जितने भी ब्रांड्स को रीच आउट करता था, एंड ट्रस्ट मी आई हैव रीच्ड टू ऑलमोस्ट 100 ब्रांड्स, जिनमें से मुझे सिर्फ स्टार्ट में 8 से 10 ब्रांड्स का रिप्लाई आया। उन 8 से 10 में से 4-5 के साथ मैंने काम किया, और उन 4-5 में से भी 2 से 3 ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पे किया अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज आस्किंग, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। खैर, तो आई विल टेल यू अ स्टोरी। I reached out to different brands, and how I started, how I got into I would say मैं उनकी नजर में किस तरीके से आया। तो मैं क्या करता था कि जो भी नए ब्रांड्स थे मैं उनसे परचेज करता था उनकी कोई भी जो क्लोथिंग, क्योंकि मैं क्लोथिंग के ऊपर ब्लॉग बनाना चाह रहा था, मैं फैशन के ऊपर बनाना चाह रहा था। तो जो मेंस फैशन पेजेस थे जो कि हु वर सेलिंग क्लोथ्स, आई वुड ऑर्डर क्लोथ्स फ्रॉम देम, और मैं वहां से जब कपड़े मेरे पास आते थे आई वुड क्रिएट अ फ्री कंटेंट फॉर देम। मैं फ्री कंटेंट उनके लिए बनाता था और उनको आगे सेंड कर देता था और उनको पोस्ट करता था। इस तरह से मैं उनकी नजरों में आना शुरू हुआ, एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग मी। वो मेरे कंटेंट को रीपोस्ट करते थे अपने पेजेस के ऊपर, और इस तरह बहुत से ब्रांड्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब वो रीपोस्ट करते थे तो दूसरे ब्रांड्स भी उनको देखते थे, और इस तरह से मुझे ब्रांड्स ने थोड़ा सा नोटिस करना शुरू किया और मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। खैर, मैंने बहुत से काम किए हैं जो कि फ्री काम थे, और मैंने अपने पेज के ऊपर उनमें से बहुत से काम अपलोड भी किए हुए, आप देख सकते हैं जाके। उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जिनका मुझे कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम ऐसे हैं जिनसे मैंने पैसा कमाया भी है और मैं अभी भी कमा रहा हूँ। तो आई गेस ये कुछ चंद टिप्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट होने की जरूरत है। योर कंटेंट, यू शुड बी क्रिएटिंग समथिंग विच इज डिफरेंट, और उस ब्रांड को हेल्प कर रही हो टू इंक्रीज इट्स रीच। क्योंकि अगर तो आपका कंटेंट रीच बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, अगर आपके कंटेंट को देख के कोई बंदा उस ब्रांड को मतलब रीच नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं दे रहा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ब्रांड्स ऐसी इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं और ऐसे इंसान पे, ऐसे इन्फ्लुएंसर पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। So I guess this is much for the video. Thank you so much. Before going, I would like to give a shout out to these bad boys. Have a look. These are literally amazing. I got these from wheezyshoes.pk. Go order these bad boys and go visit Wheezy Shoes. They have some amazing shoes, amazing sneakers, and that's all for today's video. Tell me in the comment section if this helped you. Like and subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.